ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੈਲੀਫਿਸ਼, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਮਿਸਿੰਗ ਸਮ ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜੈਲੀਫਿਸ਼। ਡਿਸਮਿਸਿੰਗ ਸਮ ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜੈਲੀਫਿਸ਼, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਡਿਸਮਿਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਗਲਤ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਨੇ। ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਬਿਲੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਅਰਲੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜੈਲੀਫਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਜੈਕਟਿੰਗ ਸਮ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੈਲੀਫਿਸ਼। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜੂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ? तो वो जो नीचे इनएक्यूरेट वाली बात बोली थी उससे बी लग रहा है। उससे बी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है दिलप्रीत? बी लग रहा है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਗੁਣ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਿਲੀਫ ਸੀਗੇ, ਥਿਊਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲੀਫ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਮਨ ਬਿਲੀਫ, ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੈਨੀ ਆਫ ਆਵਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਲੀਫ ਅਬਾਊਟ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਵਰ ਇਨਐਕੂਰੇਟ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਲੀਫ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਬਿਲੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਿਲੀਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਬਿਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਕਨਕਲੂਡ ਇਨ ਦਾ 5th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ 5th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਰੀਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਆ 5th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। 5th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 5th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਮਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਹਾਰਮਲੈਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹਾਰਮਲੈਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਮਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ? मतलब हार्म कर सकती हैं। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ हार्म ਨੇ। कर सकती हैं। ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
कि हार्मलेस नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ कि स्टूडेंट ਨੂੰ लगे हार्म। तो सर एक तरीके से यहाँ पे उसने उसकी नेगेटिव बात करी है, फिर नीचे उसने पॉजिटिव बात करी है कि वो मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, ਹਾਂ यहाँ पे देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ और ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ फिर सारा लास्ट में ये बोला इनका कॉम्प्लेक्स रिलेशन। ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ऑन ਜੋ द अदर हैंड, ਕੰਟਰਾਸਟ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਲ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਆਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ, ਕੁਛ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਰਜਰੀ, ਵੂੰਡ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਸਰਜਰੀ कोलेजन ਵਗੈਰਾ ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ एंड ਹੋਇਆ ਵਾ, इंटेस्टाइन। ਕਿਦਾਂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੱਢਿਆ, ਦਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਜ਼ देयर ਆਰ ਰੇਂਜ ਆਫ प्रॉब्लम है, डिसीज है तो ਜਾਨੇ ਕਿ इनकी। ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। पॉजिटिव भी है। तो ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਆ। हम्म। ਹੁਣ तो ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों है। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਹੈਵ सर मुझे तो ए लग and रहा है। disadvantages. Human have a hideous, serious negative impacts on jellyfish. Jellyfish will cause a problem for human in future. Human and jellyfish are fundamentally similar. ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। जी ए ऑप्शन होगी सर। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ये तो है जी। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਸੀਰੀਅਸ 네ਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲਰਜੀਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸਮ ਪੀਪਲ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ तो 네ਗੇਟਿਵ। सर ये फॉल्स में आएगा अगर ऐसा लिखा हो? मतलब ये नहीं आऊगी ना ऑप्शन, ये क्रॉस होगी साडी। ਹੁਣ नहीं ਤੇ अगर चलो हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करें तो? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ सर मैं वो बात समझ गई, बट मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एन एग्जांपल मान लो अगर ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन में ये लाइन होती तो ये फॉल्स के अंडर आती या नॉट गिवन में आती? हाँ, उसमें क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या लिखा था उसने, ये मान लो अगर ट्रू फॉल्स, इसको अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मान रहे हो और उसको पैसेज में मान रहे हो तो ऑफ कोर्स जो है वो फॉल्स हो जाएगी ना। वहां पे वो कह रहा फॉल्स हो मछलियों का जाएगी, हाँ इंसानों यही के ऊपर पूछना हो था। है, मछलियों का ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि सर ह्यूमन का फॉल्स का मेन मीनिंग यही होता है वो चीज हो रही है बट उल्टी हो रही है। हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट उसने लिखा जेलीफिश विल कॉज प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन इन फ्यूचर, इसके बारे में उसने कुछ लिखा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये इंसानों को प्रॉब्लम करेगी, नहीं लिखा। ये वाली नहीं। ऑप्शन ही नहीं है बीच में, ये दोनों क्रॉस हो गई। लास्ट में उसने लिखा कि इन दोनों के फंडामेंटल जो हैं वो सिमिलर होते हैं, ह्यूमन के भी और जेलीफिश के भी। तो इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं लिखा है। ये वाली दोनों ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं लिखा था। ऑप्शन बी और ए में कंफ्यूजन बनती है अगर कोई स्टूडेंट इसके राइट आंसर तक पहुंचता, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने लिखा है व्हाट इज द मेन पॉइंट इन द 6th पैराग्राफ। अब हमें ये नीचे वाली ऑप्शंस बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हमने सीधा जाना है पैराग्राफ में, ठीक है जी। तो पैराग्राफ में पढ़ के देखो क्या लिखा है इसने। क्वेश्चन क्या था? व्हाट उसने इज कहा द कि मेन पॉइंट क्या है 6th पैराग्राफ में, ठीक है। अब पढ़ के देखते हैं इसको, पहले थोड़ी सी समरी बनाएंगे इसकी। कहता है जेलीफिश हैव एग्जिस्टेड मोर और लेस अनचेंज्ड फॉर एटलीस्ट 500 मिलियन ईयर्स। ओके, ये मतलब कह रहा है कि ये कितना टाइम तक जिंदा रही, ये कुछ बता रहा है, साल बता रहा है। साइंटिस्ट रिकग्नाइज दैट, साइंटिस्ट को क्या लगा, उन्होंने क्या रिकग्नाइज किया है कि ओवर द प्लैनेट्स
history there have been 3 major extinctions events connected with the changing environmental conditions। तो कहता है कि जो हमारा ये धरती है इसके ऊपर 3 मेजर एक्सटिंक्शन मतलब होता है किसी चीज की खात्मा हो जाना। तो 3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं, ठीक है, जिसका कनेक्शन था क्लाइमेट चेंज के साथ, एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ। तो फिर इसने क्या कहा है आगे, साइंटिस्ट को क्या लगता था, टुगेदर टुगेदर उसके बाद इसने कॉमा डाल दिया है, टुगेदर के बाद कॉमा डाल दिया है, टुगेदर दीज 99% डिस्ट्रॉयड ऑफ ऑल लाइफ। ये जो 3 मेजर एक्सटिंक्शन हुए थे इसने 99% लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बट यहाँ पे उसने चेंज कर दिया बात को, बट जेलीफिश लिव्ड थ्रू ऑल 3। ये जो 3 कोई बड़ी आफत आई होगी धरती पे, लेकिन जेलीफिश को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जिंदा रही। रिसर्च इन द मेडिटेरियन सी, ये कोई रिसर्च हुई है, उसने क्या हमें शो किया है, उसने ये शो किया है कि इन ओल्ड एज एंड ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, जब इनकी डेथ होनी होती है, सर्टेन जेलीफिश, कुछ जेलीफिश ऐसी होती हैं, सर्टेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आर एबल टू रिवर्ट टू अर्ली फिजिकल स्टेट। वो पहली अपनी जो फिजिकल स्टेट होती है उसमें वापस चली जाती है, लीडिंग टू द असर्शन दैट दे आर इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब ऐसे फील होता है कि जैसे वो अमर हो गई है, मतलब वो मरती, जो बंदा मरता नहीं है ना, जो चीज खत्म नहीं होती उसको हम इमोर्टल बोलते हैं। अब आगे उसने एक कंट्रास्ट मार्कर यूज किया है, वाइल दिस में नॉट टेक्निकली बी ट्रू, कहता है ये बात टेक्निकली सच नहीं है, इट इज सर्टेनली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। ये बहुत ही कहता जबरदस्त डिस्कवरी की गई है कि कुछ मछलियां जो हैं वे जिंदा अमर हो जाती हैं जब वो लास्ट स्टेज पे जाती हैं। तो व्हाट इज मोर, आगे इसने इसके बारे में और लिखा है, इसी थ्योरी को कंटिन्यू कर रहा था। ओशन टुडे कंटेन 30% मोर पॉइजन, आजकल 30% ज्यादा जहर आ चुका है पानी में समुद्र के, देन डिड 100 years ago। 100 साल पहले जितना जहर था उससे ज्यादा 30% ज्यादा बढ़ चुका। इससे क्या हो रहा है, कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर न्यूमरस स्पीशीज, इससे बहुत सारी स्पीशीज को प्रॉब्लम हो रही है, बट नॉट जेलीफिश। ठीक है, उसके बाद उसने कॉमा डाल के लिख दिया कि इवन थ्राइव इन मोर एसिडिक वाटर, वो जिंदा रह सकती हैं चाहे जितना मर्जी पानी एसिडिक हो, वो फिर भी जिंदा रह सकती हैं। जेलीफिश थ्रू आउट देयर लॉन्ग हिस्ट्री हैव शोन देमसेल्फ टू बी रिमार्केबल रेजिलिएंट। रेजिलिएंट होता है किसी चीज से लड़ने की ताकत होना, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं ना, कई बार हम मेडिसिन खाते हैं तो वो रेजिलिएंट होते हैं, रेजिलिएंट मतलब उनका कोई असर नहीं होता है, तो वही चीज वो जेलीफिश को कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पैसेज में क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, 1 मिनट में इसको थोड़ा नीचे कर दूं यार। ये देखो क्या कहा है उसने, जेलीफिश हैव मे हैव वंस इनहेबिटेड ड्राई लैंड, कि शायद वो कोई जो सूखी जगह वहां पे भी एक बारी रह चुकी हैं, ऐसा उसने कुछ लिखा है क्या? हेलो, जी सर है नहीं। नहीं लिखा। नहीं नहीं सर, सर। सर है। ओके जी, उस तो बाद उन्होंने लिखा है नहीं जेलीफिश लिखा। इंप्रूव द एनवायरमेंट दे लिव इन, इसके बारे में कुछ लिखा है? नहीं हम्म, सर। नहीं लिखा है। ओके, जेलीफिश हैव नहीं, नहीं। एबल टू सर्वाइव ओवर द टाइम, जेलीफिश ने ऐसा प्रूव यस, किया है, यही हाँ है। जी। यही है। प्रूव किया है कि वो पिछले टाइम में सरवाइव करी हैं। ओके, फिर उसने लिखा है जेलीफिश हैव कॉज्ड अदर स्पीशीज टू बिकम एंडेंजर्ड, कि जेलीफिश जो है उसने दूसरे जो नहीं, जानवर हैं उनको मजबूर कर दिया खत्म होने के लिए, उनको खात्मे के लिए जाने के जेलीफिश जो नहीं, मिला, ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल नहीं दिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली एक तो डी ऑप्शन और एक ए ऑप्शन, इसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है पैसेज में, तो ये तो पूरी तरह से क्रॉस हो गई। बी ऑप्शन भी क्रॉस हो गई, डी ऑप्शन भी क्रॉस हो गई हमारी। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है बी और सी ऑप्शन। यहाँ पे हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी है, बी ऑप्शन भी हो सकता है, डी ऑप्शन भी हो सकता है। डी ऑप्शन के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए एक बारी हम दोबारा जाएंगे पैसेज में और अच्छे से कंफर्म करेंगे, इसको एज ए ट्रू फॉल्स लेंगे और देखेंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन सा टाइटल सूट करता है। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। बी में उसने लिखा है जेलीफिश इंप्रूव द एनवायरमेंट दे लिव इन, कि वो जिस एनवायरमेंट में रहती हैं,
कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं इम्प्रूव कर देती है। वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेती हैं। और सी में उसने लिखा है ना, ऐसा उन्होंने प्रूफ किया है कि वो पिछले टाइम में सरवाइव कर लिया था उन्होंने। देखते हैं इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। ਸਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। दोबारा से एक बार क्योंकि क्वेश्चन। लास्ट लाइन में लिखा जेलीफिश थ्रू आउट रेजिलियंट वाली बात। हाँ वो जिंदा रही है, टाइम की ही बात कर रहा है। सी है ऑप्शन इसका, बी नहीं है, सी है। सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है आपका। आगे चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। ये समझ में आया ना कैसे करना? देखो ये जो ऑप्शंस हैं कैसे क्रॉस आउट करनी, कैसे हमने दो ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, मैं स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करी जाऊँ उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सीखनी है ये चीजें, ये आपने कैसे करनी है। समझ में आया कि सर नहीं आ रहा लेकिन है? एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता ना डिटेल में पढ़ने का, तब क्या करें? मेरी बात सुनो ना, आप लोगों को पढ़ना कैसे, मैंने वही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये सारी डिटेल्स नहीं पढ़नी, आपने मेन मेन वर्ब्स, जैसे जेलीफिश का स्टार्टिंग में लिखा था एग्जिस्टेड, इतने साल तक जिंदा रही, ओके। फिर उसके बाद कोई प्लेनेट हिस्ट्री के बारे में ये बता रहा है कि 3 इवेंट्स आए, उसमें से क्या हुआ, 99% दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जेलीफिश ने सरवाइव किया तीनों में। फिर उसने कुछ, क्या कोई रिसर्च हुई है, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करके आपने पढ़ना है। ये थोड़ी है कि आप एक एक सेंटेंस पढ़ते जाओगे, मेन मेन चीजें पढ़नी है आपने और उसको दिमाग में रख के फिर उसको रन थ्रू करना है। अभी तो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो तब टाइम लगेगा ही ना। अगर हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों ने मेरे से पहले फाइंड आउट कर लिया इसका आंसर कि सर इसका आंसर जो है वो सी है। फुली आप लोगों को ये लेसन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। जिन स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में दिक्कत आती है उनको ये लेसन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं, कैसे आपको कौन सी चीज़ अंडरलाइन करनी है। और जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।